जो एक आदमी जो एक दिन पहले एग्जाम पढ़ के जा रहा है, आई थिंक जो 24 घंटे वो पूरा 20 घंटे सीरियसली पढ़ रहा है, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई चीज़, वो फोकस में पढ़ा है। तुम जो चीज़ फोकस करके वो एक दिन में पढ़ के निकाल सकते हो, जो 4 दिन से फोकस ही नहीं कर पा रहा, कोई फायदा नहीं है। दैट्स द थिंग। आज के डेट में इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें एक पर्सनल टीचर चाहिए, तुम्हें चैट जीपीटी है यार, वो बता सकता है कि ये दिस इज ऑप्शन है, यूट्यूब है यार, और क्या ही चाहिए। मैं इंट्रो देते थे कि मैं आपके बैच में क्लास में हूँ, क्या मुझे, मैं प्लानिंग वैसे रिसर्च कर रहा हूँ, मेंटर कर सकते हो, क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ होती थी। तो मोस्ट हर टीचर ये ऐसे ही बोलते थे, ऐसे नहीं कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है। तो वो आते थे, बस आइडिया शेयर करते थे, फिर दैट्स हाउ आई गॉट मेंटरशिप फ्रॉम टीचर्स। जैसे मुझे आदत है कि पढ़ के लिख लिख के लर्न करने का, किसी को सिर्फ देख के लर्न होता है, मटेरियल्स अलग होता है, हर एक पर्सन को सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करते हैं हाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कोमल सिंह और हम आज के पॉडकास्ट में वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर अभिषेक ओमकार प्रसाद जी का। सर, अब पहला सेशन हम शुरू करेंगे आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। Hey, hi everyone. I'm Abhishek Prasad. So recently I'm working at Velo.ai as a software engineer. So I'm working on LLMs and AI right now and making chatbots for our clients and everything. सर, आप अपने जर्नी के बारे में प्री स्कूल से लेके कॉलेज और उसके बाद अभी आप जो कॉर्पोरेट में हैं उसके बारे में आप Hmm. अपना ब्रीफ वो हमें बताएं। So I think I just passed out in 2017 from the school. Okay. So I was very curious about the computer things and all. Okay. So I was into mostly in coding and all, and because I had a very good groups in the school as well. So after that, I just joined back to the college. So I got admission in the Keele University. Then the first thing that time very famous was thing that autonomous vehicles and going on our college. Okay. So that time we I just joined one of the team which is known as Swayamchalit Gadi. Okay, so it was a new team we just formed. So we just working on the target was the team was that to compete with most of the IITs teams and Stanford and all the competitions in US. So we was trying to build autonomous vehicles and all. So I just joined that team. Then after working few years that developing autonomous, so we made first self-driving car in the Odisha. Then we got a lot of sponsorship from Nvidia, AWS, and multi companies that started sponsoring us, and that we got funded by college as well. So then it was a then I started leading the team. Then it was a good transition from the junior to team lead in the 2 years. Then I just switched to corporate in the field of AI and all. This is how it's transition between me to college to corporate in the field of this machine learning and AI. सर, आपने ये पर्टिकुलर फील्ड ही क्यों चूज किया? The reason I chose because when I joined the team Swag, okay, the Swam Gari, that's it's mostly focused on machine learning and all. So I was very curious as to how I can explore these whole things. So I just spent my whole 3 years in BTech in this field. So I got interested and I did multiple research papers under some teachers. Okay, some research paper got published in London, and now it's with one of my professor in Cardiff University. That gave me to carry forward in this field. सर, आपका पहले से ही था कि लाइक जब आप अपने प्राइमरी स्कूल कर रहे थे तब से आपका ये एम था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है, बीटेक ही करना है, यही सब फील्ड में जाना है, या कुछ और एम था आपका? That was clear from class six only. With the seven and eight, now that's we. I think I remember we had a computer subject in class seven and eight. So that time I was curious about I will go in this field only. In I was clear that in from school that I will pursue engineering. सर, आपने अपने इनिशियल स्टेज में कैसे मतलब स्टडी मैनेज किया अपने प्री स्कूल टाइम पे, बोर्ड्स के टाइम पे? Of preschool time, to be honest, that I didn't focus a lot. Means I was like mostly in 11th, 12th. Okay, I scored good marks in 10th. 11th, 12th, I did JE and all. We tried to figure it out, JE करना है, ये करना है. So we tried and didn't score that much. Okay, it's been very average score. Okay, but I know what I'm good at. So I was focusing that only because I went to a good college. That thing changed when I joined the team. Okay, that's the good. I got a very good mentors who just skilled me all the things in the technologies that helped me to be better in in the engineering field. Yeah, I was as average student in college. It's not that in school, but I just improved myself a lot in the college. सर, जैसे कि अभी कॉलेज में ही होता है, मैं भी पढ़ रही हूँ,
तो असाइनमेंट्स इतने, उसके बाद इतने सारे चीजें रहते हैं, उन सब के बीच में आपने कैसे मैनेज किया अपना पढ़ाई? सो मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो रही है, हम्म। 9 या 10 बजे स्टार्ट होती थी। हम्म। सो वी ट्राइड कि चलो उससे पहले कुछ क्लास स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले हम थोड़ा जल्दी चले जाते थे क्लास में, मी एंड माई फ्रेंड। ओके, सो वहीं पर असाइनमेंट्स कर लिए या फ्रेंड्स होते थे हेल्प करने में, सो वहाँ टाइम बचता था। एंड आफ्टर डेट कि उसके लंच ब्रेक के टाइम में जो हमें मिलता था, जो अराउंड 1 to 1 से 3 बजे तक 2 आवर्स का ब्रेक मिलता था, तो उस टाइम में भी सपोज तुम लंच पहले कर लिए, सो यू कैन रैप योर थिंग्स। सो 3 से 6 क्लास होने के बाद 6 से लेके रात के 10 बजे से भी यूज टू वर्क, या रात के 12 बजे से हम लोग जो लैब था, जो टीम की लैब था, इट वॉज इन मैकेनिकल बिल्डिंग, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। हम्म। So I was the only first year student who got to in that team. Okay, so वहाँ पे सारे seniors and so I was very lucky that I was only a junior. Okay, सारे seniors हैं, क्या भैया लोग कुछ क्या बोलेंगे, so I was it's very curious to go and all, so that because I was curious कि हम US जाने वाले हैं, so that motivating कि ये टीम US जाएगी, चलो मैं भी चलूंगा ये वो, so I was giving all the potential to that thing, so सर that was my motivation. सर जैसे कि होता है फर्स्ट ईयर में आने पे उतना पता नहीं रहता है कॉलेज का कि क्या कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर आपको कैसे ये सब इंफॉर्मेशन मिला कि ऐसे कोई टीम बिल्ड हो रही है जो ये सब काम कर रही है? सो बेसिकली क्या होता, आई थिंक इट वाज संडे, आई थिंक सैटरडे, ओके सैटरडे इज इवनिंग। सो हमारे फूड कोर्ट में एक पोस्टर लगी थी कि दैट एक टीम है स्काईलाइन रेसिंग, दैट्स देयर हायरिंग फॉर सम जूनियर्स एंड ऑल। सो हम्म। मैं फिर मंडे को इंटरव्यू ऐसे कुछ थी, देन आई थिंक मैं बाय मिस्टेकली उस दिन जल्दी भी उठ गया था संडे को। सो आई जस्ट ओके ठीक है उठ गए, चल लेट्स गो एंड गिव दे आस्क्ड मी तुमने क्या किया है, और टोld कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ एंड ऑल। बट दे टू द इंटरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे काम कर रहे थे, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया था देर वर्किंग ऑन ऑटोनोमस व्हीकल, बिकॉज इट वाज द कॉन्फिडेंशियल प्रोडक्ट फॉर टू डोंट बी टू पब्लिक। देन दे टोल्ड मी हे अभिषेक वी हैव देर मेकिंग सम अदर टीम, यू वांट टू जॉइन और? सो आई टोल्ड नहीं नहीं, मुझे तो स्काईलाइन ही ज्वाइन करना है, दूसरी टीम थोड़ी ज्वाइन करना है, क्योंकि वो फेमस टीम थी उस टाइम पे स्काईलाइन। So I told no, no, it's a part of parent company's team. Okay, that you can join. Then I joined, and I got a very good mentors. A lot. All the seniors are very good. Then I just got focus in this field. सर जैसे कि मतलब हम लोग पहले भी जब भी पढ़े हुए थे 11th 12th में और फर्स्ट ईयर में, हम लोग को उतना पढ़ाया ही नहीं जाता है ये सब के बारे में, जिस फील्ड से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, बेसिक अप्लाइड साइंस और यही सब के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। तो फिर आपके पास कैसे मतलब एक्सपीरियंस ये सब कुछ कैसे रहा आगे उनके नहीं, साथ वर्क करने के लिए? I didn't had any experience. Okay, before joining that's all this field means basic था कि when I joined the college, उसके बाद होता है कि तुम क्या करो, people like कि ये वेब डेवलपमेंट कर रहा है, ये कर रहा है। So मुझे उस टाइम पे स्टार्टेड विद आई थिंक साइबर सिक्योरिटी। ओके, हाँ। सो मैं मोस्टली साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट आई जस्ट क्या हुआ उसके बाद, ड्यू टू सम हमारे जो सॉफ्टवेयर टीम के जो भैया थे, सो ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल, सो he was not able to work for some couple of weeks. So I thought, ki, let's handle me the machine learning parts and all. So I started reading some research paper, tutorials about machine learning and that, mostly in image detection. I got interested into that, and I shifted my whole career to from cyber security and all to machine learning and software development. सर ये सब के अपार्ट में भी फिर जो कॉलेजेस के एग्जाम वगैरह होते थे, वो सब के लिए फिर आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ना? क्योंकि क्लासेस में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हाँ वो बहुत कोर चीज होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एक खुद का भी होता है ना जिसके वजह से हम फिर करेंगे। बस टीचर के पढ़ाने से कैसे ही हो सकता है? That I agree. But think you can this first second semester was not that tough first, because you have the same चीज तुम वापस ही पढ़ रहे हो, मतलब 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर वही रहता। हाँ बस सेकंड सेमेस्टर आई थिंक वी गॉट ड्यू टू कोविड, आई थिंक हम लोग का घर पे फिर क्या बोलते हैं कि वो हो गया घर जाओ वापस जाओ, दैट्स कि अब जितने भी क्लासेस में घर से होंगे, कॉलेज तो बंद हो चुका था फॉर 2 years। सो उससे फायदा ये हुआ कि हमने एक्स्ट्रा चीजें जो कोर चीजें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स पे, उस चीज पे ज्यादा मैं फोकस करने लगा। असाइनमेंट्स करने के लिए, कुछ हेल्प करने के लिए, एग्जाम्स के लिए 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ लो, इट्स फाइन। तो दैट्स इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू स्कोर 9+ CGPA। एक दिन पहले पढ़ लो, क्योंकि हम लोग चीज पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट वाज इजी फॉर मी। देन उसका सो वो लास्ट 2 years वही मेंटेन किया कि
सर कोविड के टाइम पे तो हाँ फिर कॉलेजेस तो बंद हो गई थी, तो टीचर का मेंटरशिप मिलना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा हो गया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतने सारे बच्चों को साथ में हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से फिर बच्चे बदमाशी भी करते थे ऑनलाइन क्लासेस में। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया आई पढ़ना? क्योंकि मेंटर तो सो बहुत, मेंटरशिप के लिए बहुत दिक्कत होती थी, टीचर से इंटरेक्शंस। अभी ऐसा था कि मैं किसी, फॉर एग्जांपल आई वाज डूइंग सम रिसर्च अंडर सम टीचर्स, ओके, they used to mentor me ki Abhishek, this is the thing, what we can explore and all. That was a good point. I got a very good mentors from the teacher under who I'm doing the research and the projects, so that's how I got a mentorship. यस सर, फिर उसके बाद मतलब आपके मेंटरशिप के बारे में, तो आप लोग ने जब फिर वापस ज्वाइन किया, और फिर मतलब आपने डिस्कवर कैसे किया कि मतलब मेरे को ये टीचर्स लोग हेल्प कर सकते हैं, या फिर मेरे को आप उन तक पहुंचे, या फिर उन्होंने आपको ढूंढा, ऐसा कुछ? अब क्या, तो वो टीचर्स हमारे क्लास लेते थे, फॉर हाँ। एग्जांपल कोई टीचर हमें क्लास में लगता है कि हाँ ये टीचर नॉलेज है, गाइड कर सकते हैं, तो हम जाके उनको व्हाट्सएप पे हाय मैम, क्या मैं इंट्रो देते थे कि मैम आपके बैच में क्लास में हूँ, क्या मुझे, मैं प्लानिंग जैसे रिसर्च कर रहा हूँ, इंटर कर सकते हो? क्योंकि उनके पास बैंडविड्थ होती थी, तो मोस्ट हर टीचर ये ऐसे ही बोलते थे, ऐसे नहीं कि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है। तो वो आते थे, बट आइडिया शेयर करते थे, फिर दैट्स हाउ आई गॉट मेंटरशिप फ्रॉम टीचर्स। तो सर मतलब आप जो रिसर्च वगैरह कर रहे थे, हाँ, उसमें मेंटरशिप का मतलब बहुत ज्यादा रोल रहा आपके साथ में, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका खुद का क्या मतलब उसमें आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या रहा? उससे इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि आई गॉट अ फर्स्ट थिंग कि मैं बड़े पर्सपेक्टिव में बड़े अच्छे लोगों से कनेक्ट हो पाया, रिसर्चर से, थ्रू टीचर्स की, दैट वुड आर रिसर्चर फ्रॉम यूके और जर्मनी एंड ऑल। पहला चीज़ वो हुआ, फिर दूसरे कॉलेजेस के जैसे इंटरेक्शन हुआ, एंड वी यूज टू सॉल्व अ लॉट ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते थे। ओके, इट्स व्हाट यू आर डूइंग इंजीनियरिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। So I had, I think, in college time, I had 136 contribution in a year in the open source. So that was also is a good thing that I just contribute. I was चलो कुछ contribute ही करते रहते हैं. So that was improvement after doing research. I got, so the main target was to me doing research to go out of India. कि चलो ट्राई करना है, रिसर्च चाहिए बैकग्राउंड में, तो वो मेरा टारगेट था, इसलिए आई वाज डूइंग रिसर्च एंड ऑल, बिकॉज सर, मेरा फील्ड वही थी ना। हाँ सर, मतलब आपका इसमें क्या कहना है कि जो हम एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं आईआईटी जेई का इंजीनियरिंग के लिए, उसका एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम पेपर होता है वो, और हमारा जो कोर्स रहता है, क्या वो बिल्कुल रिलेटेड होता है या फिर नहीं होता है? रिलेटेड नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज और रिलेटेड नहीं है, बट द जेई एंड एंट्रेंस मेक्स यू समथिंग, ओके, टू हैंडल प्रेशर, ओके, कि आप क्या कर रहे हो टू हैंडल प्रेशर, एंड इट मेक्स यू, इफ यू आर डिसिप्लिन, इट टीचर्स यू द डिसिप्लिन थिंग, ओके, कि हर दिन वो चीज़ प्रैक्टिस करना है। ओके, आप कॉलेज में आ जाओ, कॉर्पोरेट में आ जाओ, चीज़ हो, आप डेली कोई चीज़ को नहीं करोगे, यू विल लैग बिहाइंड, ओके। तो सेम थिंग वो टीचर्स इन 11 12 में जेई क्या है, इट्स मेक्स यू अंडरस्टैंड द प्रेशर, ओके, व्हाट्स यू आर डूइंग, ये मैं बोल सकता हूँ। यस सर, अगर ऐसा हम कंसिडर करें कि आप एक क्लास में हैं जिसमें ऑलमोस्ट हम्म। 50-60 स्टूडेंट्स बेसिकली एक क्लास में होते ही हैं, तो एक टीचर ओके। आपको पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचर का टीचिंग जो वो पढ़ा रहे हैं, जो मटेरियल्स वो आप सबको दे रहे हैं, वो सारे बच्चों के लिए इक्वल होगा, बट उन्हीं में से हम्म। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो उसका क्या रीजन हो सकता है कि उस बच्चे का पीछे रह जाना, क्या के पीछे क्या रीजन हो सकता है, और एक बच्चा जो बहुत अच्छा कर रहा है वही सेम थिंग से, तो उसके आगे बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है? वो चीज़ डिपेंड करते हैं कभी कभी, हाउ यू अंडरस्टैंड द कर्व, जो आपको, फॉर एग्जांपल ले लो, आप मुझे कुछ चीज़ समझा रहे हो, मैं एक अलग फेज में समझ सकता हूँ, मतलब और किसी को अलग टाइम के साथ समझ सकता है, डिपेंड्स अपन क्यों, सबका अलग अलग तरीका होता है लर्न करने का चीज़ें। जैसे मुझे आदत है कि पढ़ के लिख लिख के लर्न करने का, किसी को सिर्फ देख के लर्न हो जाता है मटेरियल्स, किसी को अलग होता है, हर एक पर्सन को सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ वो आदमी जो अच्छा मार्क ला रहा है, आई थिंक सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि घर जाने के बाद जो टीचर के नोट्स पढ़ रहा है, ओके, इट्स ये नोट्स पर जो पर्सन नहीं ला रहा है, आई थिंक वो फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा है कि मैं सेल्फ स्टडी के थ्रू जाऊँ, और उसका ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहा है टीचर के ऊपर, जो पढ़ा रहे हैं वही है। आई थिंक यहाँ पर की फैक्टर सेल्फ स्टडी आ रहा है, बट आई कैन से सर, इफ यू डू सेल्फ स्टडी एंड सो यू कैन इम्प्रूव।
सर आपके लाइफ में सेल्फ स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस रहा आपके पूरे जर्नी में? मैं तो पूरा इंजीनियरिंग सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। वो तो है। सेल्फ स्टडी अभी भी चल रहा है। So, अभी भी मोस्टली सेल्फ स्टडी है। अभी क्या है, वो खुद पढ़ो खुद ही करो, जैसे कोई आके पढ़ा के थोड़ी जा रहा है। हाँ। हाँ, बस रेफरेंस के लिए यूट्यूब है। अभी तो बहुत चीजें, यू हैव यूट्यूब, यू हैव, इफ यू हैव डाउट एनी क्वेश्चन गो एंड आस्क चैट जीपीटी। वो हम्म। समझा सकता है। यूट्यूब है, विकिपीडिया है, रिसर्च पेपर्स हैं, सारी चीज अवेलेबल ऑनलाइन। सो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी इजी फॉर सेल्फ स्टडी। सर अगर मैं कहूँ कि कोई एक बच्चा है जो लाइक अफोर्ड नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या फिर कोचिंग्स वगैरह, तो वो बिना मेंटरशिप के, बिना ऐसे फिजिकल टीचर मेंटरशिप के, क्या वो नॉर्मल नोट्स वगैरह तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, गूगल पे भी हमें मिल जाएगा, तो उसके थ्रू और अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू क्या वो सक्सेसफुल बन सकता है या वो करियर में अच्छा कर सकता है? या श्योर, आई जस्ट नो सम फ्यू पीपल्स, ओके। मैं आर्टिकल्स से पढ़े थे कि some people cracked very good companies like Google and Microsoft. Okay, that's by their own self study using free resources. Okay, मुझे कुछ इस इंटरव्यू क्रैक करना है, पढ़ना है, यूट्यूब में पढ़ सकता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए, वो भी इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है। हाँ। फिर मुझे इंटरव्यू की कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, हैं हेल्प करने के लिए, डाउट्स हैं, लोग फोरम्स हैं, आप जाके पूछ सकते हो। फ्री सेल्फ स्टडी। सो यू डोंट, यू जस्ट नीड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। यस। आज के डेट पे इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें एक पर्सनल टीचर चाहिए, तुम्हें चैट जीपीटी है यार, वो बता सकता है कि ये दिस इज ऑप्शन है, यूट्यूब है यार, और क्या ही चाहिए। तो सर अगर आप ही अगर एक टीचर हो और आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि तुम मेरे नोट से रेफर करो या फिर तुम यूट्यूब और गूगल में ढूंढ लो, तुमको मिल जाएगा, तुम वहां से पढ़ लो? जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जो जहाँ तक तुम समझ पा रहे हो कि कौन से नोट्स तुम्हारे इजी है, ओके। कि सो तुम्हें अच्छे नोट्स मिले, यू कैन शेयर विद मी आल्सो, ओके। अभी पुराने टीचर होगी, तुम मेरे ट्यूशन में पढ़ो, मेरे नोट्स तभी मार्क्स मिलेंगे, अभी थोड़ी। यार दैट्स क्या, जो तुम्हें प्रीफरेबल लगे। सर देखा जाए तो हम जो बुक से पढ़ रहे हैं, अभी मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग ही कर रही हूँ, तो मैं भी जो बुक से पढ़ रही हूँ सब में पुराने माइक्रो प्रोसेसर्स जो पहले से रहे हैं उनके बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो हमेशा से रहा है बुक्स में वही सब पढ़ा रहे हैं। तो अगर मुझे भी आगे जाके कुछ अच्छा करना है या फिर कोई रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व होना है, तो फिर मैं कैसे कोप अप करूँ, क्योंकि मेरे को तो टीचिंग उसी हिसाब से मिल रहा है जो हमेशा से मिलते आ रहा है। और अभी अभी देखा जाए तो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो अगर उस चीज में हम रह गए तो अभी बहुत डिफरेंट हो गया है हर चीज। तो मैं कैसे उसमें खुद को इन्वॉल्व कर सकूं या फिर मैं कैसे कोप अप कर सकूं जिसके वजह से मैं अच्छा कर पाऊं? For that, you need a good, I think, community. Okay, for example, I had a very good seniors and community who guided me. Okay, first, for example, आप जिस फील्ड में इंजीनियरिंग करो, आपकी उसके जो सीनियर्स हैं, जो कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे गाइड करते हैं, दे कैन हेल्प यू कि ओके दिस इज ओल्ड स्टार टेक्नोलॉजी एंड दिस इज अ न्यू थिंग, because they have gone through it, so they will guide us. So how I got help from my seniors. So you can also go through the seniors mentorship, and you can ask teachers who are good in this field. Okay, not that वो जो help नहीं करते हैं, ऐसे कुछ teachers होते हैं जो help करते हैं। वो second चीज है, you can go and Google and ask YouTube में road maps की कैसे हो रहा है, if I'm stuck in this, तो इसी solutions हैं, you can do this. हम्म। But it's better if you go for any seniors in your field, हम्म। because he will guide you very good way. सर तो अगर मैं आपका सजेशन मांगू कि बीटेक में रह के कैसे अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, सिलेबस कवर करना, एग्जाम्स में कैसे अच्छे स्कोर करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई विल से कि चीज़ें, फॉर एग्जांपल, मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस सीएससी थी। हम्म। सो मैं मोस्टली सीएससी चीज़ को, मैं इफ़ आई एम इंटरेस्टेड, मुझे वो इंटरेस्ट था, सो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सो एक इंटरेस्ट होती है कि जब एग्जाम होने से पहले चाहिए था, हम लोग काम करते तो उसको थोड़ा और इन डेप्थ में थ्योरी में पढ़ना, प्रैक्टिकल तो कर चुके हैं। सो थिंग इज दैट कि यू हैव टू रीड, ओके, कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि कॉलेज के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, इट विल हेल्प यू टू मेक योर बेस एंड बेसिक थिंग स्ट्रांग, वो इंपॉर्टेंट है। बट यू हैव टू गिव अ टाइम, ओके, यू हैव टू मेक योर, कि ऐसे नहीं हर दिन पढ़ना है। when you get a time, just go and read books, okay, अपने फ्रेंड से डिस्कशन करो, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, ओके। कोई मेरे दोस्त फॉर एग्जांपल, उसने कुछ नया टॉपिक पढ़ा बुक में, ये अभिषेक पता है ये हम ये कर सकते हैं, कि ये बुक में मेंशन था, तो दिमाग में बैठ जाता है। फिर डिनर कर रहे हैं, सो वन एक मुझे याद है कि मेरा दोस्त था, ही वाज टेलिंग समथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ओके, एंड मतलब नोड जेएस के बारे में, ऐसे में बैठा था सुन रहा था।
सो वो मेरे दिमाग में था, एंड सेम क्वेश्चन से 2-3 दिन के बाद एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था। सो मैं पढ़ा तो नहीं था ना, बट हाँ मेरे दोस्त ने डिस्कस किया था, अच्छा ऐसा होता है, तो मैं वो सेम चीज बोला, देन इट हेल्प मी टू गेट माय सेकंड इंटर्नशिप इन दैट कंपनी। Yes. सो दैट्स द सेम थिंग। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेल्फ स्टडी कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बेस पे सेल्फ स्टडी कितना किसी के लिए जरूरी हो सकता है? सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल्फ स्टडी, बिकॉज तुम खुद से कहीं प्रॉब्लम, तुम खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तुम्हें जो चीज समझ में नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझ में नहीं, तुम खुद ढूंढने लगते हो, खुद हम्म। सॉल्व करने लगते हो, फिगर आउट करते हो कैसे हो रहा है। तभी तुम वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है कि तुमने खुद ढूंढा है कि कैसे हुआ, बट आई फील। और सेम चीज मैं सभी टीचर से पूछ लेता हूँ इंस्टेंटली, तो सेल्फ स्टडी टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा ये तो कुछ भूल जाओगे एक पॉइंट में, जब खुद से सॉल्व करने लगते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करने लगते हो, दैट्स इट हेल्प यू टू रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर टाइम। Yes. ओके, इट्स मेक यू अ बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दैट प्रॉब्लम और दैट टॉपिक। सर अगर दो लोगों का एग्जांपल लिया जाए कि एक बच्चा है जो डेली एफर्ट्स डाल रहा है पढ़ने में, डेली कुछ ना कुछ कर रहा है, और दूसरा है एग्जाम के पहले पढ़ के जा रहा है, तो दोनों का अप्रोक्सीमेटली मार्क्स उतने में डिफरेंस नहीं है। जो एग्जाम के भी पहले पढ़ के आ रहा है उसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो पहले पढ़ के नहीं भी जा रहा है पर हमेशा से पढ़ रहा है उसके भी अच्छे ही मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एक बच्चे के पढ़ाई के ऊपर? ये पॉइंट है कि एनवायरनमेंट से पहले फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड पॉइंट है कि जो हर दिन पढ़ रहा है, शायद वो 4 घंटा पढ़ रहा है, उसमें 2 मिनट या 5 मिनट ही फोकस करके पढ़ रहा है। हम्म। जो एक आदमी जो एक दिन पहले एग्जाम पढ़ के जा रहा है, आई थिंक जो 24 घंटे, वो पूरा 20 घंटे सीरियसली पढ़ रहा है, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, बिना कोई चीज़, वो फोकस में पढ़ा है। तुम जो चीज़ फोकस करके वो एक दिन में पढ़ के निकाल सकते हो, जो 4 दिन से फोकस ही नहीं कर पा रहा, कोई फायदा नहीं है। दैट्स द थिंग, ये डिपेंड्स करे तुम्हारा डिसिप्लिन और फोकस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन में कैसे पढ़ रहे हो। सर कैन यू प्लीज गाइड अस लाइक हाउ अ काम एनवायरनमेंट, एक शांत एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों की पढ़ाई पे जोर डालता है, उनको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है? इट्स जैसे कि मैं जो घर पे रहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम्स में, सो मैं मोस्टली मेरे घर में मेरी मम्मी एंड पापा हैं, सो इट्स वेरी इजी फॉर मी, मैं बहुत काम इन्वायरमेंट में पढ़ने में ईजी होता है। सो मुझे चीज़ें जल्दी लर्न होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं हॉस्टल में हूँ, हम्म। तो कोई दोस्त आ रहा है, कोई आ रहा है, रूममेट आ रहा है, कुछ हो रहा है, सो उसमें क्या होता है, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम बाहर चले जाते हो, सो हम्म। उसमें नहीं होता है। आई थिंक काम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। सर आप हॉस्टल में रह के कैसे मैनेज किए हर चीज? लाइक हॉस्टल में बहुत सारा नेगेटिव चीजें भी होती हैं, बहुत सी नेगेटिव चीजें होती हैं, तो आपने कैसे खुद को वो सब चीजों से हटा के एक अपना एम क्रिएट किया, और कैसे हॉस्टल में भी रह के अपना पढ़ाई मैनेज किया और इतना अच्छा वो सक्सेसफुल बन पाए? नहीं, आई थिंक फर्स्ट ईयर में, आई थिंक हॉस्टल में, आई थिंक वी नॉट फोकस इन लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब हम दोस्त के साथ हैंग आउट कर रहे थे, हम्म। मतलब एग्जाम के टाइम में। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का कुछ पार्ट तो घर पे गया, सो हॉस्टल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किए। जब हॉस्टल आए तो उस टाइम हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे, तो इंटरव्यू से पहले कि एवरी वन वॉज बिजी इन दर इंटरव्यूज, की सबका इंटरव्यू चल रहा है, सबके कंपनी से कॉल आ रहा है, सो सबके पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं रिवाइज करने में। सो उस टाइम आई थिंक हॉस्टल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। हम्म। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर विजन? लाइक हम एक एम क्रिएट किए हैं कि हम बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए, और हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे उनके लिए, काम इन्वायरमेंट, जहाँ पे वो अच्छे से पढ़ सके और उनके सारे ज़रूरत के मटेरियल्स उनको वहीं पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपका इसमें क्या सजेशन रहेगा, या फिर आप क्या सोचते हैं हमारे इस मोटिव के बारे में? Yeah, I have talked with your founder, okay, about this, and I only told it's very good idea, yeah. Just you go for it, okay. It's something people are looking for it, and they're not was not available in India. I think it started from Bhopal, I think. Yeah, यस। so I just came to know. Your founder only told me that, hey, Abhishek, it's going on. We are planning. What's your suggestion? I told him it's a very good initiative, and you go for it. And all. So it's a very good thing for people who can afford these things. Okay, I think it's a very needed thing which students are looking for it. सर आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि एक इंसान को अपनी सेल्फ स्टडी पे कैसे फोकस करना चाहिए? आई थिंक मैं बोलूँगा कि सेल्फ स्टडी, आई थिंक प्रॉपर रोड मैप्स बना लो, मतलब क्या पढ़ना है, क्या चीज़ करना है, सो देन इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, आई थिंक प्रॉपर कैसे रोड टाइमिंग्स एंड टाइमलाइंस बना लो,
that will help you. But I used to follow. सर अभी जैसे बीटेक के बारे में देखा जाए, इंजीनियरिंग आजकल मतलब एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारे एडवांस रोबोटिक्स हमारे इंडस्ट्री में आ गए। तो अभी जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि एआई के वजह से जॉब्स को खतरा हो जाएगा, कोडर्स के जॉब को इफेक्ट पड़ेगा। क्या ये सच है कि एक्चुअल में इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हो सकते हैं? I think that is kind of true and kind of not true. Okay, okay. For obviously average coders and average technical skills, ke liye there will no job. That is pretty sure. Okay. Recently, I am also working some in the open source project. Okay. Recently, that Devin AI, which is the first AI software engineer, got launched. Okay. Okay. It can do things what a normal software engineer is doing. Okay. For example, it's like for the jobs. Okay. Oh, there is a needed okay of AI in the because you can use AI in your daily work okay to more productivity, but it is also has a bad thing. Okay, first you are more dependent upon that thing. Okay, हर चीज तो यही बता देगा तो मैं क्यों करूँ? But to sustain in the job in this field, you have to be not an average code or average technical skills. That's no job for average skills and average coders and coding peoples. You have to give a lot of efforts. You have to be more. You have to learn a lot of things. Okay, that I can suggest. You have to ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें पे आपको जाना पड़ेगा। सर अभी ये जैसे चीज तो देखा देखा जाए कि बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बीटेक में इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सब करने के बाद भी लोग अपना वो ब्रांच स्विच कर लेते हैं बाद में। क्या करते हैं, कोडिंग्स वगैरह में जाते हैं, मतलब लैंग्वेजेस सीखते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस, और उसके बाद वो भी सॉफ्टवेयर में ही अपना जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। तो क्या मतलब आजकल उसमें ज्यादा जॉब्स हमको प्रोवाइड हो रही है, उसमें हमें ज्यादा बेनिफिट है, या फिर हम अपने कोर में भी अगर मेहनत करें तो उसमें भी हम उसके जितना compete कर सकेंगे? obviously core is important. For example, आप ले लो for example पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम्म। ऑब्वियसली एआई जिसमें डेवलप हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जीपीयू से ही बन रहा है ना, तो हम्म। ऑब्वियसली उसकी तो डिमांड है, कोर का डिमांड तो है एंड इट डिपेंड्स करता है पर्सन क्या बन एआई के ऊपर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता, डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं नहीं। सर ये मतलब स्विच करना, जो ब्रांच स्विच करना है, वो आप क्या कहना चाहेंगे कि सही है, या फिर उनको अगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना भी एक जगह रखना चाहिए अपने उसमें, अपने मेन ब्रांच में? हाँ आई थिंक मेन ब्रांच रखते हैं बेनिफिट क्योंकि तुम इंजीनियरिंग उसी पे कर रहे हो, Yes. 4 years spend it on that. Yes, that's the thing I will say कि तुम उस पे किया है, you can excel on that, but if you want to change in the career so you can go for it. This is not it's not an issue. सर थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन। बहुत वार्म Thank you. इंटरेक्शन रहा आपके साथ, और बहुत सारी चीजें भी मुझे भी जानने को मिली, एज ए मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ इंजीनियरिंग ही। That's तो nice. आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपकी बातों से हमें। थैंक यू सर। Sure, thank you so much.